students, and welcome back again. And in this video lecture we are going to discuss about the different classes of phylum Arthropoda. We have completed 2 lectures on phylum Arthropoda and we have discussed the general features, different type of mouth parts, useful and harmful arthropod, and different type of development. So this video would be about the different type of classes in Arthropoda. Arthropod, being the largest phylum, are classified into a total of 7 classes. There would be 5 major classes and 2 minor classes. For example, there would be a class for that organism which act as a connecting link, that is Peripatus, which is having the characters of both Annelida and Arthropoda. There would be a class for that organism which is not undergoing any evolutionary change, that is living fossil. Then there would be a class of aquatic arthropod, that is crustacean. A class of arthropod with many legs. There would be actually 2 classes. One arthropod which is having poisonous claw with many legs, and other arthropod which is not having poisonous claw with many legs. So Diplopoda and Chilipoda would be there. Then there would be the largest class, Insecta. And last but not the least, we will be learning about Arachnida and crustaceans. I don't know if crustaceans I told you or not. So we will be learning 7 classes here. The title of today's lecture, it would be classification of phylum Arthropod. Classification of phylum Arthropoda. Is that clear? Alright. So total of 7 classes we have to discuss with certain features and examples. Examples are important. The first class which I am going to discuss here, the class 1 is class Onychophora. Class 1 is class Onychophora. And to class Onychophora, connecting link, which is Peripatus, or we call it walking worm. Which organism is classified in class Onychophora? Connecting link, which is also known as walking worm. So class Onychophora, member of this class is a connecting link between Annelida and Arthropoda. Member of this class is a connecting link between Annelida and Arthropoda. कनेक्टिंग लिंक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास 2 अलग अलग फाइलम के फीचर्स होते हैं. एंड हु इज कनेक्टिंग लिंक, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. इफ आई एम लाइक दिस इज माय वाइल्ड गेस, पेरिपेटस के बारे में सवाल जरूर पूछा जाएगा आपसे, और आपसे पूछा जाएगा वो किसका कनेक्टिंग लिंक है, तो आप आंसर करेंगे आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा का. पेरिपेटस का कॉमन नेम होता है वॉकिंग वॉर्म. पेरिपेटस का कॉमन नेम होता है वॉकिंग वॉर्म्स. अब जो पेरिपेटस है उसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर एनिलिड के होते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर आर्थ्रोपोड के होते हैं. एनिलिडा कैरेक्टर कुछ हम पढ़ेंगे एनिलिडा वाले कैरेक्टर इसमें, और कुछ पढ़ेंगे इसमें आर्थ्रोपोडा वाले कैरेक्टर. राइट. नाउ व्हाट आर द एनिलिडा वाले कैरेक्टर? सबसे पहले I am just asking you guys, what is the excretory organ found in Annelida? You have learned that excretory organ in Annelida is nephridia. आर्थ्रोपोडा के अंदर excretory organ coxal gland या फिर Malpighian tubule या green gland हो गए थे. तो सबसे पहले तो ये जो एनिमल होते हैं, they are long in their structure and they are worm-like. And long worm-like feature is Annelidian feature. Then they are having nephridia फॉर एक्सक्रीशन. तो इनके पास एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रिडिया होते हैं, और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोड में भी मेंशन किया था मैंने कि भाई जो आपके पास पेरिपेटस होता है उसके पास नेफ्रिडिया होते हैं फॉर एक्सक्रीशन. आर्थ्रोपोड वाला कौन सा कैरेक्टर होता है? प्रेजेंस ऑफ एंटीना. प्रेजेंस ऑफ एंटीना इज अ फीचर ऑफ आर्थ्रोपोड. तो एंटीना की जैसा प्रेजेंस, एंटीना
आर्थ्रोपोड वाला कैरेक्टर है, नेफ्रिडिया एनलिडा वाला कैरेक्टर है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर एनलिडा वाला कैरेक्टर है, फिर एक और इसके पास आर्थ्रोपोड वाला कैरेक्टर होता है एंड दैट इज इनके पास जो रेस्पिरेशन होता है मेजॉरिटी ऑफ आर्थ्रोपोड में आपने पढ़ा है कि भाई रेस्पिरेशन कैसे होता है, मेजॉरिटी ऑफ आर्थ्रोपोड में रेस्पिरेशन होता है ट्रैकिया से। तो जो ट्रैकिया होता है दैट इज फॉर गैसेस एक्सचेंज, अ ट्रैकिया फॉर गैसेस एक्सचेंज, एंटीना ऑन हेड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्थ्रोपोड इन केस ऑफ पेरिपेटस। वर्म लाइक स्ट्रक्चर एंड नेफिडिया फॉर एक्सक्रीशन, इसके जो नेफिडिया होते हैं वो सेगमेंटल होते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में नेफिडिया होते हैं तो हम उनको सेगमेंटल नेफिडिया कह देते हैं। सेगमेंटल नेफिडिया फॉर एक्सक्रीशन एंड वर्म लाइक बॉडी, दीज आर द कैरेक्टर ऑफ एनिलिडा एंड सो दीज आर द कैरेक्टर ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो पहली क्लास के बारे में इतनी चीजें याद रखनी है कि भाई आर्थ्रोपोड की जो पहली क्लास है उसके अंदर कनेक्टिंग लिंक को रखा गया है, उस कनेक्टिंग लिंक में कुछ एनिलिडा के कैरेक्टर होते हैं, कुछ आर्थ्रोपोडा के। देन जो दूसरा क्लास होगा उसको बोलते हैं मीरोस्टोमेटा, और जो मीरोस्टोमेटा है दैट इज द क्लास ऑफ लिविंग फॉसिल। क्लास नंबर 2, क्लास 2 ऑफ आर्थ्रोपोडा, ये माइनर क्लास पढ़ा रहा हूं पहले मैं आपको, इज मीरोस्टोमेटा एंड मीरोस्टोमेटा इज अ क्लास ऑफ लिविंग फॉसिल। मीरोस्टोमेटा इज अ क्लास ऑफ लिविंग फॉसिल, और लिविंग फॉसिल कौन सा बताया था, आई गेस किंग क्रैब बताया था आपको। लिविंग फॉसिल वाज लिमुलस, लिमुलस, और लेट्स कॉल दैट किंग क्रैब। इसके बारे में ये भी याद रख लेंगे पिछले 190 मिलियन ईयर से इसमें कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं हुआ है, पिछले 190 ईयर से इसमें कोई भी इवोल्यूशनरी चेंज नहीं हुआ है। अब इस क्लास के जो मेंबर होते हैं, जो किंग क्रैब होता है, आई एम जस्ट आस्किंग यू फॉर योर रिवीजन, इनके पास रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है। मैंने कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बताए थे जिनको कहा था बुक गिल्स। बुक गिल्स आर फॉर रेस्पिरेशन इन केस ऑफ किंग क्रैब। अभी आपको यही याद रखना है बुक गिल्स का क्लासिकल एग्जांपल। और इनके पास एक्सक्रीशन के लिए कॉक्सल ग्लैंड होती है, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास 4 पेयर ऑफ कॉक्सल ग्लैंड्स होंगी। जो आपके पास मीरोस्टोमेटा या लिमुलस होता है उसमें एक और फीचर याद रख लेंगे, इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इसका जो लार्वा होता है वो प्रॉन के लार्वा के जैसा ही होता है। तो 3 फीचर याद रखेंगे, वन इज रेस्पिरेशन इज विद द हेल्प ऑफ बुक गिल्स, देन एक्सक्रीशन इज विद द हेल्प ऑफ कॉक्सल ग्लैंड एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई सबसे जो मोस्ट प्रिमिटिव आर्थ्रोपोड है, जो मोस्ट प्रिमिटिव आर्थ्रोपोड है वो कहाँ क्लासिफाई है। आंसर होगा मीरोस्टोमेटा। इट कंसिस्ट ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव आर्थ्रोपोड, राइट। सो 2 क्लासेस आर कंप्लीटेड, राइट। अब मैं बताऊंगा आपको क्रस्टेशियंस के बारे में, जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड का क्लास होता है। क्रस्टेशियंस एक्वेटिक आर्थ्रोपोड होते हैं, प्रॉन, क्रैब, डेफनिया, साइक्लोप्स, क्रेफिश, ये सारे के सारे क्रस्टेशियन होते हैं। क्रस्टेशियन का जो बॉडी होता है उसमें बॉडी डिवीजन पढ़ लेंगे पहले, सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। देन सिफेलोथोरैक्स को कैरापेस कहते हैं, जो डोर्सल साइड पर सिफेलोथोरैक्स ना, अगर टॉर्टोइज आपने देखा हो तो उसके ऊपर एक बहुत ही हार्ड सी शेल होती है, ऐसी इनकी भी बैक पे एक हार्ड सी शेल होगी, इसको कैरापेस कहेंगे। इनके पास 1 पेयर ऑफ कंपाउंड स्टॉप्ड आईज होगा, 2 पेयर ऑफ एंटीना होंगे, इनके एंटीना बाइरेमस हो जाते हैं। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एंटीनरी ग्लैंड होंगे, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एंटीनरी ग्लैंड होंगे, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स होंगे। तो ये कुछ फीचर्स है क्रस्टेशियन के जो आपको याद रखने हैं। सो लेट मी टेल यू अबाउट द फीचर्स ऑफ क्रस्टेशियंस हियर। जो थर्ड क्लास होगा, क्लास नंबर 3, थर्ड क्लास साउंड वेरी ऑड। जो क्लास नंबर 3 होगा दैट वुड बी अ क्लास ऑफ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, a class of aquatic arthropod and that is class crustacean और crustacea। आगे भी हम पढ़ते रहते हैं भाई ये क्रस्टेशियंस है, ये क्रस्टेशियंस है। तो क्रस्टेशियंस कौन से मेंबर होते हैं जो भी मेंशन करने वाले हैं। इनके बारे में सबसे पहले याद रखना, इनका जो बॉडी डिवीजन होता है, इनके बॉडी डिवीजन में इनका जो हेड है वो थोरैक्स के साथ
कंबाइंड हो जाता है, उसको बोलते हैं सिफेलोथोरेक्स। हेड थोरेक्स के साथ फ्यूज हो गया तो वी कॉल्ड इट सिफेलोथोरेक्स, और दूसरा जो पार्ट बचेगा उसको बोलेंगे एब्डोमेन। अब इनका जो सिफेलोथोरेक्स होता है उसमें डोर्सल साइड पर ऑन द बैक साइड एक बहुत ही थिक काइटिन का कवरिंग आता है, काइटिन का शेल बन जाता है जिसको बोलते हैं कैरापेस। तो सिफेलोथोरेक्स इट इज डोर्सली कवर्ड बाय अ थिक काइटिनियस शेल, और इस थिक काइटिनियस शेल को बोलते हैं कैरापेस। तो कैरापेस क्या होता है, इसको सिंपल याद रखने का तरीका है कि भाई जैसे टॉर्टोइस के केस में उसके बैक पार्ट पर एक थिक शेल बन जाता है, ऐसे ही इनके पार्ट पर थिक शेल बनता है। प्रॉन क्रैब अगर आपने देखे हो तो उनके थिक जो डोर्सल पार्ट है, जब वो बैठे हैं तो जो जमीन की तरफ वेंट्रल पार्ट है जो आपको नजर आ रहा है ऊपर, वो डोर्सल पार्ट है। तो डोर्सल पार्ट पर एक थिक कैरापेस बन जाता है। सेकंड जो आप इनके बारे में याद रखेंगे, बॉडी डिवीजन। ओके, नाउ कमिंग ऑन two pair of antenna and one pair of compound eyes इनकी जो कंपाउंड आईज होती है वो स्टॉक्ड होती है, ऑफ स्टॉक्ड कंपाउंड आईज। स्टॉक का मतलब ये होता है बेटा कि फॉर एग्जांपल आपकी शर्ट के ऊपर बटन लगे हुए हैं, तो दीज आर लाइक स्टॉक्स। इनकी जो कंपाउंड आई है वो हेड के ऊपर इजीली विजिबल हो जाती है। जैसे अगर कंपाउंड आई कुछ ऐसे हो जाए तो वो इजीली विजिबल है, उसको स्टॉक कहते हैं। ये वायर स्टॉक वो कनेक्ट रहती है टू बी वेरी सी। अब इनके अंदर जो एंटीनास होते हैं जनरली 5 सेगमेंटेड होते हैं, वो एंटीनास बाइफॉर्म्ड होते हैं। एंटीनास आर बाइफॉर्म्ड, इनको बोलते हैं बाइरेमस अपेंडेजेस। इनके जो अपेंडेजेस होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं, वो दो में डिवाइड हो जाते हैं। दे आर नोन एज बाइरेमस अपेंडेजेस, जो इनकी फीडिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। तो बाइरेमस का मतलब मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूं यहां पर। बाइरेमस अपेंडेज का मतलब होता है दे आर फॉर्म्ड और दे आर डिवाइडेड इनटू 2। तो भाई 2 पेयर ऑफ एंटीना होते हैं, 1 पेयर ऑफ स्टॉक कंपाउंड आईज होती हैं। देन आप इसमें याद रखेंगे इनके पास जो रेस्पिरेशन होता है क्या तो जनरल बॉडी सरफेस से हो जाएगा जो बहुत रेयर है, या फिर वो गिल से रेस्पायर करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर बॉडी सरफेस, पर आप एग्जैक्टली याद रखें क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से गिल्स। तो गिल्स आर द मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन व्हिच आर प्रेजेंट इन देम। जब इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन केस ऑफ क्रस्टेशियन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एंटीनरी ग्लैंड। इनके एंटीना के ऊपर कुछ एक्सक्रीटरी सेल्स होती हैं जो एलिमिनेट करती रहती हैं, एंटीनरी ग्लैंड। और अदर नेम ऑफ एंटीनरी ग्लैंड इज ग्रीन ग्लैंड, राइट? फाइन। So on a quick revision, crustaceans, the body is divided into cephalothorax and abdomen. Bipaired appendages are there. Biramous appendages are there, which are 5 pair in number, which are 2 antennas, which are having 5 segments. A pair of stalk compound eyes, respiratory organ are body surface and gills. Excretory organs are antennae gland. देन इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट इज जनरली इनडायरेक्ट, इट कुड बी डायरेक्ट इन फ्यू केसेस। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट उसमें मेंशन कर दिया था ना हमने, राइट। अब यहाँ पे जो मेंशन करना है वो है एग्जांपल्स। जो आपको याद रखने हैं वो याद रखने हैं आपको एग्जांपल्स के बारे में। तो मैं एग्जाम्पल लिखना शुरू कर देता हूं। प्रॉन, पैलमनियन, कैन से स्टैंड फॉर क्रैब हियर, साइक्लोप्स। अच्छा, साइक्लोप्स का एक फीचर और याद रख लेना आप लोग, वो मल्टीपल पार्टनर के साथ कॉपुलेट कर सकता है। साइक्लोप्स को कहते हैं एनिमल विद 100 वाइज, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में। डेफनिया,
आपने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने पढ़ा है कि साइक्लोप्स एंड डेफिनिया ज़ूप्लैंक्टन्स का भी काम करते हैं, और हाइड्रा वगैरह जो साइक्लोप्स और डेफिनिया के ऊपर ही फीड कर रहा था, ठीक है। क्रेफिश, सो दीज आर फ्यू क्लासिकल एग्जांपल ऑफ योर क्रस्टेशियन। इज दैट क्लियर? और एक आध याद करके बताऊं आपको, एक होता है लेसिफर, एक होता है लेसिफर, नो सॉरी, लेसिफर लाको जो होता है वो इंसेक्ट में आता है, वो यहाँ पर नहीं मेंशन करेंगे आप, ठीक है। लेसिफर लाका अलग होता है और ल्यूसीफर अलग होता है। लेट इट बी, जब कंफ्यूजन है तो आप ये कुछ एग्जांपल्स याद रख लें। प्रॉन इज देयर, कैंसर इज देयर, साइक्लोप्स इज देयर, देन दैट्स ओके। क्रेफिश का कोई साइंटिफिक नेम पूछे आपसे तो आप क्या कहेंगे? एस्ट्राकस। क्रेफिश का साइंटिफिक नेम होता है एस्ट्राकस, ठीक है। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो क्रस्टेशियन में आपने क्लासिफाई किए हैं। देन नेक्स्ट क्लास हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डिप्लोपोडा के बारे में। पहले डिप्लोपोडा पढ़ लेते हैं, फिर जो मिलीपीड वाला क्लास है, फिर शिलोपोडा पढ़ लेंगे जो आपका सेंटीपीड वाला क्लास है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट डिप्लोपोडा और मिलीपीड। देखो कुछ इंसेक्ट होते हैं जिनके अंदर खूब सारे लेग्स होते हैं, नोट इंसेक्ट, कुछ आर्थ्रोपोड है जिनके पास खूब सारे लेग्स हैं। आर्थ्रोपोड के पास जनरली 6 लेग होते हैं, तो उनको हेक्सापोडा और इंसेक्टा में क्लासिफाई कर दिया हमने। आर्थ्रोपोड के पास जनरली 6 लेग्स होते हैं, तो उनको आपने क्लासिफाई कर दिया इंसेक्टा हेक्सापोडा में। फिर जो अरेक्निडा है उनके पास 4 पेयर ऑफ लेग पढ़ेंगे आप, और वो एनिमल जिनके पास 100 या 1000 लेग्स हैं उनको अलग अलग क्लासेस में रखा है। तो पहले पढ़ लेते हैं डिप्लोपोडा के बारे में जो मिलीपीड का क्लास है, और फिर पढ़ेंगे शिलोपोडा के बारे में जो आपका सेंटीपीड का क्लास होगा, ठीक है। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट क्लास। ओके, सो क्लास डिप्लोपोडा। सी, जो मेंबर्स ऑफ क्लास डिप्लोपोडा होते हैं उनका जो बॉडी है, उनका बॉडी डिवाइडेड होता है इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। The body is divided into head, thorax and abdomen. तो अगर मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊं, let's say this part of body is head part here, then this part of body is thoracic part here, actually it would be something like this. It would be something like this. Let's say this part of body is head part, then this part of body is first segment of thorax, second segment of thorax, third segment of thorax, and rest of the part of body they would be abdominal part. Let's say these are segments of abdomen, and they have many segments, hundreds of abdominal segments are there. I am not making that much. तो जब हम इस एनिमल को देखेंगे तो इट वुड बी लाइक ए वर्म, और इसके बॉडी 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जो हेड पार्ट होता है बेटा, हेड पार्ट के पास होता है 1 पेयर ऑफ एंटीना, साथ में इनके पास होते हैं सिंपल आईज, और सिंपल आईज के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑसिलाई। जो ऑसिलाई है वो विजन में हेल्प नहीं करते हैं, दे कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट। So let's say these are the one pair of antenna which has been arising from here. एंटीना याद रखेंगे जॉइंटेड अपेंडेजेस के बने होते हैं, तो मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट अनजॉइंटेड एंटीना बना दिया था, पर एंटीना जो होते हैं वो जॉइंटेड अपेंडेजेस के बने होते हैं। नंबर ऑफ सेगमेंट इन एंटीना यहाँ पे हम नहीं मेंशन करते, और साथ में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर, जिनको बोल दिया ऑसिलाई। ये तो हो गया हेड के बारे में। जो थोरैक्स का फर्स्ट सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं कॉलम, और एब्डोमेन का जो लास्ट सेगमेंट है वो थोड़ा सा कॉनिकल होता है, कुछ ऐसे करके, उसको बोलते हैं टेल्सन। ये नहीं याद रखने, ये सवाल नहीं पूछे जाते।
अब आपसे जो पूछा जाएगा, एब्डोमेन के फर्स्ट सेगमेंट में लेग नहीं होते हैं, एब्डोमेन के फर्स्ट सेगमेंट में लेग नहीं होते हैं, बाकी दोनों सेगमेंट में वन पेयर ऑफ लेग होते हैं। तो एक्सेप्ट फर्स्ट देयर इज वन पेयर ऑफ लेग इन ईच सेगमेंट। ये तो हो गया बेटा थोरैक्स के बारे में। जब इसके एब्डोमेन की बात करते हैं तो एब्डोमेन में एक नहीं, हर सेगमेंट में दो पेयर ऑफ लेग होते हैं। ये सेगमेंट एब्डोमिनल सेगमेंट, अच्छा लेग भी जॉइंटेड अपेंडेजेस ही होंगे, मैं यहाँ पर अनजॉइंटेड बना रहा हूँ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, बट यहाँ पर भी जॉइंटेड अपेंडेजेस ही होंगे। टुडे समबडी कमेंटेड कि इतने लंबे लेक्चर ना बनाएं आप, तो अगर पढ़ना है तो बेटा इतने ही लंबे लेक्चर देखने पड़ेंगे, अदरवाइज कभी भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा, या फिर आप कंपटीशन लेवल नहीं टच कर पाओगे, आप एक नॉर्मल स्टूडेंट के जैसे, एक नॉर्मल बैच के जैसे पढ़ते रहो। तो जितने भी एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं, हर एब्डोमिनल सेगमेंट पर प्रेजेंट होते हैं टू पेयर ऑफ लेग अप टू लास्ट, और जितने भी थोरैसिक सेगमेंट होते हैं, अब विद द एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट, हर एक थोरैसिक सेगमेंट पर वन पेयर ऑफ लेग होते हैं। ठीक है, ऑलराइट, so let's say this is the head part here, this is thorax and this is abdomen here। फिर आप याद रखेंगे एब्डोमेन के पास क्या होता है, तो लेट मी मेंशन हियर टू पेयर ऑफ लेग इन ईच, टू पेयर ऑफ लेग इन ईच सेगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन एब्डोमेन। फिर इस एनिमल के बारे में एक चीज वो याद रखेंगे, इसके पास पॉइजनस क्लॉ नहीं होते हैं, नो पॉइजनस क्लॉज। एक ऐसा ही रिलेटेड एनिमल पढ़ेंगे शिलोपोडा में, जो सेंटीपीड है, ये तो हम मिलीपीड पढ़ रहे हैं, जुलूस को, तो जुलूस मिलीपीड के अंदर पॉइजनस क्लॉ नहीं होते हैं, सेंटीपीड के अंदर पढ़ेंगे पॉइजनस क्लॉ होते हैं। तो ये तो होगा बॉडी सेगमेंटेशन के बारे में। फिर आप याद रखेंगे कि इनके पास एक्सक्रीशन के लिए मल्फेजियन ट्यूब्यूल होते हैं, मल्फेजियन ट्यूब्यूल। इनके पास रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिया होता है, और इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। जो डिप्लोपोडा के मेंबर हैं उनका बॉडी डिवाइड होता है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। हेड पर वन पेयर ऑफ एंटीना एंड वन पेयर ऑफ सिंपल आईज होते हैं। थोरैक्स के फर्स्ट सेगमेंट पे कोई लेग नहीं होता है, उसको कॉलम कहते हैं। बाकी हर थोरैसिक सेगमेंट पे वन पेयर ऑफ लेग होगा, और हर एब्डोमिनल सेगमेंट पे टू पेयर ऑफ लेग होंगे। जो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है उसको टेल्सन कहते हैं, और इन एनिमल में पॉइजनस क्लॉज नहीं होते हैं। मल्फेजियन ट्यूब्यूल से एक्सक्रीशन करेंगे, ट्रैकिया से रेस्पिरेशन करेंगे, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। और इनका जो एग्जाम्पल है, जो क्लासिकल एग्जाम्पल है इस क्लास का, दैट इज जुलूस, और इसका कॉमन नेम होता है मिलीपीड। इसका कॉमन नेम होता है मिलीपीड। कुछ बुक्स में इसमें कुछ ना हमने इसको कॉमन लैंग्वेज में 1000 पैरों वाला कहते हैं, एनिमल विद 1000 लेग्स, जबकि 1000 वगैरह नहीं होते। ठीक है बेटा, तो पहला क्लास हो गया था ओनिकोफोरा, दूसरा क्लास हो गया मीरोस्टोमेटा, तीसरा क्लास हो गया क्रस्टेशियन, एंड फोर्थ क्लास हो गया डिप्लोपोडा। अब एक इसी का रिलेटेड मेंबर होता है, उसके अंदर फर्क ये होगा, एक तो बॉडी के जो डिविजन है वो अलग होते हैं, और साथ में उसके अंदर पॉइजनस क्लॉ भी आ जाते हैं। उसको कॉमनली हम 100 लेग एनिमल कहते हैं। सेंटीपीड के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सेंटीपीड मिलीपीड वो होते हैं जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में ना कान खजूरा कहते हैं, तो दे कैन एंटर इन योर ईयर। मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। राइट, नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस इज शिलोपोडा। द नेक्स्ट क्लास व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज शिलोपोडा। क्लास शिलोपोडा। जो शिलोपोडा होता है उसके फीचर्स डिप्लोपोडा जैसे ही पढ़ोगे। इसके अंदर भी जो बॉडी होता है, इन एनिमल का जो बॉडी होगा, पहले बॉडी डिवीजन की बात करते हैं। इनमें हेड होता है, और जो एब्डोमेन और थोरैक्स फ्यूज हो जाते हैं। तो एब्डोमेन और थोरैक्स फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, पहले बताया था कि उसको बोलते हैं ट्रंक। तो बॉडी विल बी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। तो लेट्स से दिस इज द हेड ऑफ एनिमल, और बाकी का जो भी बॉडी होगा उसके लिए वर्ड यूज करेंगे ट्रंक। इसमें थोरैक्स वगैरह अलग से
नहीं दिखेंगे. So let's say this hair is trunk hair. Then there are segments, so many segments in the trunk. हेड के पास होगा सिमिलरली जैसा वहां पढ़ा था, वन पेयर ऑफ सिंपल आई, जिनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑसिलाई, और साथ में वन पेयर ऑफ एंटीना. सो लेट्स से ये एंटीना हो गए और वो सिंपल आइज हो गई, वो ओसिलाई हो गई, ओसिलाई एंड एंटीना. देन बच्चे जब इनका एब्डोमेन को पढ़ेंगे, सो इनके एब्डोमेन में हर एक सेगमेंट में वन पेयर ऑफ लेग होता है. दिस इज नॉट एब्डोमेन, पार्डन माय वर्ड, दिस एरिया इज नोन एज ट्रंक. तो जब इनके ट्रंक को पढ़ेंगे, ट्रंक के हर एक सेगमेंट में वन पेयर ऑफ लेग अराइज होते हैं. इट वुड बी लाइक दिस. उनके एब्डोमेन के सेगमेंट में टू पेयर ऑफ लेग अराइज हुए थे, थोरैक्स के सेगमेंट में वन पेयर ऑफ लेग अराइज होते हैं. सो ऑल थ्रू द बॉडी देयर वुड बी वन पेयर ऑफ लेग लाइक दिस. अब कर लेना कंप्लीट इसको. अब इसका जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग होता है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट. इस फर्स्ट पेयर ऑफ लेग में जो क्लॉ होता है उसको हिंदी में कहते हैं पंजा. एक पॉइजनस क्लॉ डेवलप कर जाता है. फर्स्ट पेयर ऑफ लेग में से कुछ पॉइजनस सिक्रेशन आते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉइजनस क्लॉ. तो वहां पर पॉइजनस क्लॉज नहीं होते हैं, यहां पे पॉइजनस क्लॉज होते हैं. तो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, थ्योरी में वन पेयर ऑफ एंटीना एंड ओसिलाई होते हैं, साथ में वन पेयर ऑफ लेग इन ट्रंक होते हैं. हेड में लेग्स वगैरह नहीं होंगे. फर्स्ट पेयर ऑफ लेग में पॉइजनस क्लॉ होता है. पॉइजनस क्लॉ कहां होता है, फर्स्ट पेयर ऑफ लेग के अंदर. फिर बच्चे आप याद रख लेना, इनके पास भी जो एक्सक्रीशन होता है दैट इज बाय मेलफिजियन ट्यूब्यूल. एक्सक्रीशन बाय मेलफिजियन ट्यूब्यूल. इनके पास जो रेस्पिरेशन होगा दैट वुड बी बाय ट्रैकिया. रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया और डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा. अच्छा, दोनों के स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए आपने लेग्स और बॉडी डिवीजन जरूर देख लेना कि अगर नंबर ऑफ लेग्स ज्यादा हैं हर सेगमेंट में तो ऑब्वियसली इट इज मिलीपीड, और नंबर ऑफ लेग्स कम है तो इट इज सेंटीपीड. सेंटीपीड बिलोंग टू क्लास शिलोपोडा. C for centipede, C for chilopoda. And centipede is Scalopendra and centipede is poisonous. Centipede is having poisonous claws, right? Example, अच्छा डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. इसका जो एग्जाम्पल याद रखोगे, दैट वुड बी स्कैलोपेंड्रा, स्कोलोपेंड्रा, और स्कैलोपेंड्रा इज आल्सो नोन एज सेंटीपीड. तो अब तक हो गई है 5 क्लासेस. एक क्लास सेंटीपीड की, एक क्लास मिलीपीड की, देन एक क्लास हो गई क्रस्टेशियन की, एक क्लास हो गई आपकी पेरिपेटस की, और एक क्लास हो गई लिमुलस की. अब पढ़ते सबसे बड़ी क्लास के बारे में, इंसेक्टा. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा ड्यू टू बाउंडेशंस ऑफ टाइम, बट स्टिल वी विल लर्न ऑल द बेसिक्स जो आपको याद रखने फॉर द टाइम बीइंग. आर्थ्रोपोड एक ऐसा फाइलम है कि यू कैन लर्न इट अप टू मंथ्स. आप हर एक एनिमल को डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो आपको भी नहीं करना है. यू आर इन क्लास 11 और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट. पूरे एनिमल किंगडम से हार्डली 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, और आई प्रॉमिस यू कि वो एनसीईआरटी से ही होंगे. तो ये तो जनरली फॉर योर कंपटीशन पर्पस, अगर एनसीईआरटी के बाहर पूछ लिया तो तब बताया जाता है. देन कम क्लास इंसेक्टा. क्लास इंसेक्टा में बेटा जो एनिमल होता है उसका बॉडी डिवाइड होता है. इफ आई टॉक अबाउट बॉडी डिविजन हियर, इट वुड बी हेड, thorax and abdomen. Head, thorax and abdomen. तो अगर मैं बनाऊं, अदर नेम ऑफ इंसेक्टा इज हेक्सोपोडा. वो हेक्सोपोडा से समझ में आ जाता है इनके पास 6 लेग होते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं. तो लेट्स से ये फर्स्ट सेगमेंट ऑफ बॉडी है विच इज हेड हियर, देन सेकंड सेगमेंट ऑफ बॉडी विच इज thorax हियर, और बाद का जो सेगमेंट ऑफ बॉडी होगा दैट इज व्हाट वी कॉल एब्डोमेन.
and third segment of part of body, let's say, is abdomen. Something like this. Is that clear? By magic, after some time it will become cockroach. Don't worry. अब इनका जो हेड रीजन होता है वहां पर वन पेयर ऑफ एंटीना, जॉइंटेड अपेंडेजेस याद रखना, वन पेयर ऑफ कंपाउंड आई एंड वन पेयर ऑफ सिंपल आई. तो हेड के पास होते हैं एंटीनास, सब चीजें वन पेयर में होंगी, कंपाउंड आई एंड सिंपल आई. इज दैट क्लियर? सिंपल आई को बोलते हैं ऑसिलाई. कंपाउंड आई कैसी होती है तो मैंने बताया जनरल फीचर्स में, उसमें ओमेटेरियाज होते हैं और एंटीनास. नेक्स्ट कहां गया? थोरैक्स जो होता है बेटा, उसमें होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन. मैं अपेंडेजेस बोल दूंगा यहाँ पर. थोरैक्स में लोकोमोटरी ऑर्गन या अपेंडेजेस होते हैं, अपेंडेजेस. अब ये जो अपेंडेजेस हैं ये दो तरह के होते हैं. इट कुड बी लेग्स, इट कुड बी विंग्स. जनरली ऐसे तो मैं आपको कुछ विंगलेस इंसेक्ट के भी एग्जांपल दूंगा. अभी देखा कभी बैड बग को उड़ते हुए जो आपके चापाई में खटमल हो जाते हैं, या जो आपके वो ह्यूमन लूज होते हैं पेडिकुलस, उनको फ्लाई करते हुए देखा है कि आपके सर पे बैठे थे फिर फ्लाई करके दूसरे के सर पे चले गए? नो. और इवन जो हमने सिल्वर फिश पढ़ी थी वो सारे ना विंगलेस होते हैं. तो इंसेक्टा में एक बता दूंगा, देयर इज अ ग्रुप जिसमें विंग्स नहीं होते. अब विंग्स अगर होंगे तो दे आर जनरली टू पेयर. इसको हम नाम देते हैं बेटा, फर्स्ट इज प्रोथोरैक्स, सेकंड इज मेसोथोरैक्स एंड थर्ड इज मेटाथोरैक्स. तो दो पेयर विंग होते हैं, एक मेसोथोरेसिक विंग होता है और एक मेटाथोरेसिक विंग होता है. तो अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि मॉस्किटो के अंदर सेकंड पेयर ऑफ विंग माने मेटाथोरेसिक विंग मॉडिफाई हो जाते हैं, होल्ट्रो बनाते हैं जो बैलेंसिंग ऑफ बॉडी में हेल्प करते हैं. अगर लेग्स की बात करें तो लेग्स थ्री पेयर होते हैं. लेग्स आर थ्री पेयर्स हियर. प्रोथोरेसिक लेग वन पेयर, मेसोथोरेसिक लेग वन पेयर एंड मेटाथोरेसिक लेग वन पेयर. एब्डोमेन में अपेंडेजेस नहीं होते. एब्डोमेन में अपेंडेजेस नहीं होते. ये बॉडी डिविजन हो गए क्लियर. देन एक्सक्रीशन बाय मल्फिजियन ट्यूब्यूल इन जनरल, मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, respiration, insect for respiration develop a tracheal system. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लावाज की लिस्ट बना दी थी. फिर याद रखना इंसेक्ट के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम भी डेवलप हो जाता है. वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते रहते हैं जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं. एक स्पेशल केमिकल होता है जिसको बोलते हैं फेरोमोन्स. एक स्पेशल केमिकल होता है जिसको बोलते हैं फेरोमोन्स. और जो फेरोमोन्स है उसका दूसरा नाम होता है सेक्सुअल अट्रैक्टेंट. फेरोमोन्स का दूसरा नाम होता है सेक्सुअल अट्रैक्टेंट. तो pheromones or sexual attractant are also released by insect which actually attract the opposite sexual partner. Pheromones are the special chemical which are released by insect in order to attract the opposite sexual partner. Is that clear? Next. फिर एक ग्रुप भी पढ़ा दूं मैं आपको कि भाई जितने भी इंसेक्ट हैं उनको ना आपने दो अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया है. एक होता है टेरिगोटा, एक होता है एटेरिगोटा. एप्टेरियोगोटा एंड टेरियोगोटा. तो टेरियोगोटा इज दोज वन जिनके पास विंग्स होते हैं एंड एप्टेरियोगोटा इज दोज वन जिनके पास विंग्स नहीं होते हैं. तो लेट मी टेल यू अबाउट टू डिवीजन ऑफ इंसेक्ट हियर. इंसेक्ट में कॉकरोच जो मेंबर है वो आप डिटेल में पढ़ोगे. तो somebody texted me today as well कि हम इसमें आर्थ्रोपोड में कौन सा मेंबर डिटेल में पढ़ रहे हैं. हम कोई मेंबर डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारे 3 लेक्चर हो जाते हैं. तो देयर आर 2 ग्रुप्स हियर, एप्टेरियोगोटा, P silent,
एंड टेरियोगोटा। तो जो टेरियोगोटा होते हैं वो विंग्स वाले होते हैं, बटरफ्लाई इज देयर, मॉस्किटो इज देयर, जो भी पढ़ रहे हो आप। और एप्टेरियोगोटा में विंगलेस आते हैं। एप्टेरियोगोटा में विंगलेस इंसेक्ट को रखा गया है। तो क्यों ना मैं आपको विंगलेस इंसेक्ट के बारे में बता दूं, विंग्स वाले आप कोई पहचान लोगे। विंगलेस इंसेक्ट में एक तो लेपिशमा के बारे में याद रखेंगे, लेपिशमा इज द अदर नेम ऑफ सिल्वर फिश। फिर आप याद रखेंगे बेड बग के बारे में, बेड बग। देन आप याद रखेंगे ह्यूमन लूज और पेडिकुलस के बारे में। और एक और बताया था मैंने आपको, रेड फ्लीज, ज़िनोप्सिला शियोफिस, पिछले लेक्चर में एग्जांपल है ये, जो प्लेग का पैथोजन था, उसके पास भी विंग्स नहीं होते। बाकी जो भी बच गए, बटरफ्लाई इज देयर, मॉस्किटो इज देयर, जो भी तुम्हारे सामने आ रहा है, हाउस फ्लाई इज देयर, हनी बी इज देयर, ये सारे कैसे होते हैं, ये सारे विंग्स वाले होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये फीचर हो गए। और इंसेक्ट के बारे में और क्या बताऊं मैं आपको, हेक्सापोडा प्लीज याद रखें आप। इंसेक्ट का दूसरा नाम हेक्सापोडा होता है। बाकी जो चीजें वो तो कॉकरोच को डिटेल में पढ़ के हम याद करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और ना कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बटरफ्लाई और मॉथ में क्या फर्क है। बटरफ्लाई और मॉथ में क्या फर्क है, तो मैं एक दो डिफरेंस बता देता हूं। बटरफ्लाई ज्यादा एक्टिव होती है डे टाइम में, तो उनको डाययूनल कहते हैं, दे आर मोर एक्टिव एट डे टाइम। ये ज्यादा एक्टिव होती है नाइट टाइम में, तो इनको नॉक्टर्नल कहते हैं। मोथ आर नॉक्टर्नल इन नेचर, दे आर मोर एक्टिव एट द डिम लाइट। बटरफ्लाई आर मोर एक्टिव विद द डे लाइट, ब्राइट लाइट, तो ये डाययूनल होती है। इनका जो बॉडी होता है वो ज्यादा वेल बिल्ड नहीं होता है, ये ना बहुत ही नाजुक सी होती है। सो बॉडी इज नॉट वेल बिल्ड, बॉडी इज नॉट सो वेल बिल्ड। मोथ का इन कंपेरिजन टू बटरफ्लाई वेल बिल्ड बॉडी होता है, उसको बोलते हैं रोबस्टिक बॉडी। रोबस्टिक का मतलब हुआ जानदार, राइट। सो इनका जो बॉडी होता है वो रोबस्टिक होता है, ठीक है बेटा। देन इनके जो एंटीना होते हैं, इनके जो एंटीना होते हैं वो डिस्टल एंड पर जाकर नोब बना लेते हैं, डिस्टली नोब। डिस्टली नोब का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अटैचमेंट है, जो प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया, और यहाँ पे ना ये नोब सा बन जाता है। तो जिसका एंटीना डिस्टली नोब हो वो बटरफ्लाई, और जिसका एंटीना डिस्टल एंड पर टेपरिंग हो, टेपर्ड हो, वो मोथ। इट इज हैविंग antennas are tapered distally, ठीक है बेटा। देन एक और याद रखना कि जब ये रेस्ट करती हैं तो ये अपने विंग्स को वर्टिकल पोजीशन में होल्ड करती है, विंग्स वर्टिकल ड्यूरिंग सिटिंग, ड्यूरिंग रेस्ट। और जो मोथ होता है वो अपने विंग्स को हॉरिजॉन्टली प्लेस करता है, विंग्स हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड ड्यूरिंग रेस्ट। तो एक ये भी पार्ट याद रख लेना क्लास इंसेक्टा में कि बटरफ्लाई और मोथ के अंदर क्या फर्क होता है। इज दैट क्लियर बेटा? नाउ लास्ट क्लास और बता देता हूं आपको। द लास्ट क्लास इज क्लास एरेक्निडा। एरेक्निडा इंसेक्ट से अलग होते हैं। एरेक्निडा अकेला ऐसा क्लास है जिसके पास एंटीना नहीं होते हैं, याद रखेंगे। एरेक्निडा के पास एंटीना नहीं होंगे, उनके बॉडी के पास अलग अलग तरह के अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस में हम वर्ड यूज करते हैं शैलिशिलरी, पेडिपेल्पी एंड लेग्स। उनके पास 4 पेयर ऑफ लेग होते हैं, इंसेक्ट के पास 6 पेयर ऑफ लेग होंगे। उनके पास एक्सक्रीशन के लिए कॉक्सल ग्लैंड या मल्फेजियम ट्यूब्यूल दोनों आ जाते हैं। उनके पास रेस्पिरेशन के लिए बुक लंग्स होते हैं। स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक, माइट, दीज आर 4 क्लासिकल एग्जांपल ऑफ क्लास एरेक्निडा। तो मैं एरेक्निडा के बारे में आपको बता देता हूं। द लास्ट क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज एरेक्निड्स। क्लास एरेक्निडा। देखो जो एरेक्निड वर्ड है वो स्पाइडर के लिए है।
क्लास 10th में अगर आपने पढ़ा होगा, आपके ब्रेन के पास एक लेयर होती है जिसको एरेक्नोइड मैटर भी कहते हैं, तो यहीं से वो वर्ड गया है एरेक्निडा से। एरेक्निडा के अंदर अगर बॉडी डिवीजन से शुरू करें, अगर इनका बॉडी डिवीजन से शुरू करें तो इनके जो बॉडी डिवीजन्स होते हैं वो फिर से सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन हो जाते हैं। बॉडी डिवीजन इज अगेन सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, राइट। जो इनका सिफेलोथोरैक्स होता है, अच्छा मैं एरेक्निड का डायग्राम नहीं बना रहा हूं यहां पर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एंटीनाज आर एब्सेंट, एंटीना आर एब्सेंट। जो सिफेलोथोरैक्स होता है उसके पास होते हैं वन पेयर ऑफ सिंपल आईज। तो सिफेलोथोरैक्स इज हैविंग अ पेयर ऑफ सिंपल आईज, साथ ही साथ सिफेलोथोरैक्स के अंदर 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं, 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं। इन 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस में देयर इज वन पेयर ऑफ, ये सब ना हेल्प करते हैं लोकोमोशन में और चीजों को ग्रैब करने में। अगर तुमने स्कॉर्पियन देखा हो तो याद है, स्कॉर्पियन जो बैठा होता है उसके सामने से निकल के आते हैं, देयर इज अ काइंड ऑफ अपेंडेज, उनको बोलते हैं वन पेयर ऑफ शैलिसेरी, वन पेयर ऑफ पेडिपैल्पी, वन पेयर ऑफ पेडिपैल्पी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, they are having 4 pairs of leg। तो प्लीज ये जरूर याद रखना कि कितने पेयर ऑफ लेग होते हैं। तो उनका जो सिफेलोथोरैक्स वाला पार्ट होगा उससे कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं जिसको बोलते हैं शैलिसेरी, कुछ लार्ज स्ट्रक्चर अरेंज हो जाते हैं जिसको बोलते हैं पेडिपैल्पी, और फिर यहां से अरेंज होते हैं हाउ मेनी पेयर ऑफ लेग, टोटल ऑफ 4 पेयर ऑफ लेग। ठीक है बेटा। और नीचे वाला जो पार्ट होगा दैट वुड बी एब्डोमेन हियर, नीचे वाला जो पार्ट होगा दैट वुड बी एब्डोमेन हियर। नेक्स्ट, अब इनका रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन भी मेंशन कर देता हूं यहां पर। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास, एज आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर ऑन, दे आर हैविंग बुक लंग्स। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या तो कॉक्सल ग्लैंड होती है, ऑन द मार्कर, क्या तो कॉक्सल ग्लैंड होती है, या फिर उनके पास होता है ट्रैकिया। ठीक है बेटा। उनका जो देखो, ये भी याद रख लेना, जो बॉडी का लास्ट सेगमेंट है, जो जैसे मैं अगर एब्डोमेन के लास्ट सेगमेंट की बात करूं, मेनली इन केस ऑफ स्कॉर्पियन, तो एक वर्ड होता है स्टिंग का मतलब होता है डंक, और उसके लास्ट सेगमेंट से डेवलप होता है जो पॉइजनस होता है। तो लास्ट सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन इज पॉइजनस इन केस ऑफ स्कॉर्पियन। जो स्टिंग होता है दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम द लास्ट सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन, एंड दैट स्टिंग of scorpion is poisonous. Is that clear? So body is divided into cephalothorax and abdomen. There are 6 pairs of appendages. Cephalothorax have 1 pair of simple eyes and 6 pair of appendages, chelicerae, pedipalpi and legs. Antennae are absent, book lungs for respiration, coxal gland for excretion. Now the examples. देखो 4 एग्जाम्पल याद रख लेने हैं। फर्स्ट इज स्कॉर्पियन, सेकेंड इज स्पाइडर, थर्ड इज टिक, एंड फोर्थ इज माइट्स। यू नीड टू रिमेंबर दीज 4 एग्जाम्पल: स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक एंड माइट। दिस इज अबाउट ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। Here we complete our phylum Arthropoda। तो जो बेसिक हमें लर्निंग्स होती है आर्थ्रोपोडा की, वो इन 3 लेक्चर में कंप्लीट कर ली है। अगेन आई रिपीट, आर्थ्रोपोड इतना वास्ट है कि आप उसको महीने भर भी पढ़ सकते हैं, पर हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे लिए जरूरी है।
जितना एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। कॉकरोच एज ए मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोड हम अलग चैप्टर में अलग 5-6 लेक्चर कॉकरोच के पढ़ेंगे कम से कम। सो प्लीज गो थ्रू द ऑल 3 लेक्चर्स और अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड विश यू वेरी गुड लक। टुडेज क्लास इज कंप्लीटेड हियर। थैंक यू।